پہلے زمانے کے نمازی کا حال کیسا ہوتا تھا اور ہمارا حال کیا ہے؟ چنانچہ پہلے زمانے کے نمازی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور ہے بزرگان دین کے سلسلے میں۔ تو رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ دن رات 24 گھنٹے میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ خدا کی قسم اتنی نماز پڑھنے سے میری غرض ثواب حاصل کرنا نہیں، بلکہ یہ چند رکعتیں اس لیے پڑھ لیتی ہوں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے یہ فرما کر سرخ رو ہوں کہ دیکھو میری امت کی ایک ادنا سی عورت کی یہ عبادت ہے۔ اس لیے جو ہے میں روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتی ہوں۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے علامہ مناوی نے نقل کی ہے۔ رابعۃ الادویۃ القیسیہ ثم المصریہ رأس العابدات و رئیس الناسکات القانتات الخائفات۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے بڑی تفصیل سے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ الکواکب الدریہ فی تراجم السادۃ الصوفیہ لزین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی، تحقیق محمد ادیب الجارود، الجزء الاول القسم الاول، صفحہ نمبر 286، ترجمہ نمبر 95، دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، الطباعۃ الاولی 1999، اور دارو صادر بیروت کا یہ چھپا ہوا نسخہ۔ آگے ہے قیلت کانت رابعۃ الادویہ تصلی فی اليوم واللیلہ 1000 رکعہ وتقول ما ارید بها ثوابا ولكن لیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول لانبیاء انظروا الی امرأ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیا ہے۔ المجالس السنیہ فی کلام علی الاربعین النوویہ، صفحہ 13، المجلس الثالث فی الحدیث الثالث، طبع مصطفیٰ البابی مصر، حلب کا چھپا ہوا نسخہ جو ہے اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورت تھی حضرت رابعہ بصریہ کے سلسلے میں۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کو ایک روٹی پکانے والی کی ضرورت ہوئی، میں باندی خرید کر لانے کے خیال سے بازار گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں باندی خریدنے کے ارادے سے بازار کی طرف روانہ ہوا تاکہ میری ضرورت پوری ہو۔ اتفاق سے ایک باندی بہت ہی کم قیمت میں مل گئی، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس باندی کو خرید لیا، لیکن اس کی شکل و صورت سے وحشی پن برستا تھا، کالا پن جس کو کہتے وحشی، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ و روغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کالے کلوٹے تھے، کیونکہ وہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نظام چلایا ہے، تو وحشی تھی، کالی تھی وہ، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی معشوق کے فراق میں مبتلا ہے، یہ کسی کو تلاش کر رہی، کسی سے اس کا چکر چل رہا جس کو ہم کہتے ہیں، تو کسی کے فراق میں یہ کسی معشوق کے فراق میں مبتلا ہے۔ دن تو گزر گیا، جب میں اس کو لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب میں لے کر کے آیا تو دن تو گزر گیا، جب رات آئی تو عشاء کے بعد اس نے نماز شروع کر دی، اور پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارہ ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرے پارے کے اندر، تو 2.5 پارہ ختم کی، اور وہ قرآن شریف ایسے ذوق و شوق اور محبت سے پڑھتی تھی کہ ایسی قرأت میں نے اپنی زندگی میں بہت کم سنی ہے۔ دوسری رکعت جب شروع کی تو دوسری رکعت شروع کی، اور اس میں پوری سورہ آل عمران جو تقریباً 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارہ سے بھی کچھ متجاوز ہے، تو 1.25 پارہ سمجھ کے چلیے، تو تقریباً 1.25 پارہ ہے، تو پوری سورہ آل عمران ختم کی دوسری رکعت میں۔
اب تیسری رکعت شروع کی اور اس میں پوری سورہ نساء یعنی جو تقریباً 2.5 پارہ ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 4 کے اندر ہے، اور سورہ نساء پارہ نمبر 5 پارہ نمبر 4 5 مکمل اور چھٹے کے اندر ہے۔ تو تقریباً جو ہے سورہ نساء اس طریقے سے تقریباً سورہ نساء جو ہے یہ 1.5 پارہ کے آس پاس ہو جاتا ہے کچھ، تو پوری سورہ نساء جو ہے سمجھے کہ پڑھی۔ اب وہ آدمی جو خرید کر کے باندی کو لایا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کر اس کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا کہ شاید 1.25 پارہ ختم کر کے وہ دم لے لے گی، رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اب دوبارہ نیت باندھ لی۔ 2 رکعت پوری ہوئی، 4 رکعت پوری ہوئی، پھر سے شروع ہو گئی، اور جب پڑھتے پڑھتے سورہ ابراہیم کی 13ویں پارے کی آیت اس آیت پر پہنچی، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو ہوگا، پیپ جو زخم سے نکلتا ہے، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کے اسباب کی آمد ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس شخص کو اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پڑھتے ہی فوراً وہ باندی جو تھی جس کو میں خرید کر کے لایا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑی۔ میرے گھر والے گھبرا کر اس کو اٹھانے کے لیے دوڑ کر گئے، قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ فوت ہو گئی تھی، ختم ہوتی، اس کا انتقال ہو گیا، اور جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تفصیل جو ہے روض الریاحین کے اندر تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، وہ اس طریقے سے الحکایت التاسعہ والسبعون بعد 300 عن ابی عامر الواعد رحمہ اللہ قال رأیت جاریہ ینادی علیہا بثمن لا قدر له فنظرت الیہا فاذا بها قد لصق، اس طریقے بطنها بظہرها، اس طریقے کے الفاظ جو ہے پوری روض الریاحین صفحہ 357 358 جو مؤسسۃ عماد الدین کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر، اور عنوان ہے قبر صاد، اس کے تحت جو ہے اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ یہ تو 2 واقعات تھا پہلے زمانے کی نمازیوں کے سلسلے۔ تیسرے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو حرم شریف کے کبوتر یہ خیال کر کے کہ یہ سوکھا ہوا درخت کھڑا ہوا ہے، اس پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ایک ذرا حرکت نہیں ہوتی، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ کبوتر یہ خیال کرتے تھے کہ یہ سوکھا کوئی درخت ہے، کوئی لکڑی ہے، آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر و خوف، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے سوکھے درخت کی طرح بالکل بے حس اور بے حرکت کھڑے رہتے تھے، جیسے ایسا ہو کہ کوئی مجرم کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اس کو جواب دینا ہے، اس طریقے سے اللہ کے سامنے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کھڑے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ مختصر تاریخ دمشق ابن اساکر کے اندر قال یحییٰ بن وثاب وکان ابن الزبیر اذا سجد وقعت العصا عصافیر علی ظہری تصعد وتنزل لا تراها الاجزم حائط۔ یہ مختصر تاریخ دمشق ابن اساکر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 176، تحقیق روحیۃ النحاس جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، الطبعۃ الاولی 1987 عیسوی کا۔ آگے ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں وعن مجاہد قال کان ابن الزبیر اذا قام فی الصلاۃ کان عود،
मिनल खुशूई। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 92, किताबुस सलाह, बाबु मन कान यक़ूलु फ़िस सलाह ला यतहर्रक। तहक़ीक़ मोहम्मद अव्वामा, जो शेख अव्वामा की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर किताबुस सलाह जो इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है। अत्तबाअतुस सानिया 1428 हिजरी 2007 ईस्वी, और इहयाउ उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 224, बयान तफसील मा यंबग़ी अन यहज़ुर फ़िल क़िल्ला, दारुल खैर दमिश्क का ये छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर है। चौथे पहले ज़माने के नमाजी के हाल के सिलसिले में है। हज़रत इब्राहिम बिन शरीक रहमतुल्लाह अलैह के सजदे की कैफियत ये बयान की जाती है कि जब आप सजदा करते थे तो जानवर आपको मिट्टी का टीला ख्याल करके आपकी पीठ पर बैठ जाते थे। इस पुरवकार और सुकून के साथ वो जो है सजदा किया करते थे अल्लाह के सामने। पाँचवें के हज़रत हसन फरमाते हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में इस कदर खड़े होते थे कि आपके कदम मुबारक ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से सूज जाते थे, फूल जाते थे, जिसको वरम किस कहते हैं, सूज जाते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गुनाहों से पाक और मासूम थे, और रोने की वजह से आपके मुसल्ले पर आँखों से इस तरह आंसू टपकते थे जैसे कि हल्की हल्की बारिश में बूंदें पड़ा करती है मुसल्ले वगैरह पर। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले की कैफियत हो जाती थी। चनांचे ये तफसील जो है नकल की है, उलमा ने इसको भी जो है नकल किया। क़ाल अल हसन मा कान फ़ी हादिल उम्मा उबुदु मिन फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत तक़ूम बिल असहार हत्ता, फिर आगे वक़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत क़दमाहु। इस तरीक़े के अल्फाज जो है बड़ी तफसील के साथ जो है नकल किया है। क्या नाम है, मोहम्मद बिन अल-फ़तह, मोहम्मद बिन अहमद बिन मंसूर अल-अशबही, ये किताब का इस तरीके से नाम नकल किया है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32, अल-बाबुल अव्वल फ़ी मबानिल इस्लाम, अल-फ़स्लुस्सानी फ़ी सलाह व फ़ज़लिहा, जो दारु सादिर बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। तबातुल उला 1999, रबीउल अबरार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104, बाबुद्दीनी वमा यतअल्लक़ु बिही, जो इंतशारात शरीफ रज़ी से छपा हुआ नुस्खा है। क़िस्म इराक़ 1410 हिजरी का ये छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर है ये तफसील। छठी सूरत ये कि हज़रत सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल अपनी कमर ज़मीन से नहीं लगाई, बिल्कुल सोते ही नहीं थे, और सजदा करते करते आपकी पेशानी का गोश्त उड़ गया था और सजदे की जगह पेशानी की हड्डी ही नज़र आती थी। इस कदर अल्लाह के सामने डर और खौफ और एहतमाम के साथ जो है ये हज़रात नमाज पढ़ा करते थे। चनांचे इनके बारे में जो है मुख्तसर तारीख़ दमिश्क इब्न असाकिर के अंदर क़ाला मालिक बिन अनस कान सफ़वान बिन सुलैम उअती अल्लाह अहदन ला अज़ा जंबी अला फ़िराशी हत्तल हलक़ बिरब्बी क़ाल फ़बलगनी अन्न सफ़वान आशा बाद ज़ालिक 40 सना। इस तरीक़े की इबारत जो है मुख्तसर तारीख़ दमिश्क इब्न असाकिर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 96, अल-जुज़्उल हादी अशर, तहक़ीक़ रौहियतुन नुहास, जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अत्तबाअतुल उला 1998। इसी तरीके से अल-कवाकिबुद्दुर्रिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 330, तहक़ीक़ मोहम्मद अदीब अल-जारूद, जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, तबातुल उला 1999 का ये छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। सातवीं सूरत हाल ये कि हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि सारी रात वो नहीं सोते थे। ये अल्लाह वालों की नमाज़ें हैं, वे सारी रात नहीं सोते थे और फरमाया करते थे कि ताज्जुब है कि फ़रिश्ते तो इबादत करते थकते नहीं, और हम अशरफुल मखलूक़ात होकर थक जाए और आराम की नींद सो जाए। ये जो है उन बुज़ुर्गान दीन अल्लाह के सामने इस तरीके से जो है खड़े होकर के
पूरी रात को गुजार दिया करते थे अल्लाह के सामने। चुनांचे आपके बारे में रबीउल अबरार के अंदर है, काना उवैस अलकरनी ला यनामु लैला व यक़ूल मा बालुल मलाइका ला तफ्तरू व नहनु नफ्तरी। ये रबीउल अबरार लिज़्ज़मख़शरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 97 बाबुद्दीन व मा यतअल्लक़ु बिही मिन ज़िक्र सलाह, जो इंतशारात शरीफ़ा अर्रज़ी का छपा हुआ, इराक़ का छपा हुआ नुस्खा, सफ़ा 1410 हिजरी का ये छपा हुआ नुस्खा। उसके अंदर 8वीं सूरत हालिया के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ये वही भेजी कि ए दाऊद, वो शख्स झूठा है जो मेरी मोहब्बत का दावा करे और जब रात आ जाए तो सो जाए। क्या हर आशिक अपने माशूक और महबूब के साथ तन्हाई नहीं चाहता है? ये जो है तफसील नकल की गई है रबीउल अबरार के अंदर। औहल्लाहु इला दाऊद या दाऊद कज़ब मनिद्दा मुहतबा व इदा जुन्नहुल लैल नामा अन्नी उल्बी लैसा कुल्ल मुहिब्बिन युहिब्बु खुलुवतन हबीबहू। ये इस तरीके के अल्फाज जो है रबीउल अबरार व नुसूसुल अखबार ले अबिल कासिम महमूद बिन अमर अज़्ज़मख़शरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 95 बाबुद्दीन व मा यतअल्लक़ु बिही मिन ज़िक्र सलाति व सौमी वल हज व सदक़ात व साइरिल इबादात वल क़ुरबात, जो छपा हुआ नुस्खा है इंतशारात शरीफ़तुर रज़ी कुम इराक़ 1410 हिजरी का ये छपा हुआ नुस्खा है। 9वीं सूरत ये कि हज़रत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज की नियत बांधते तो मौला के ख्याल में इस तरह डूब जाते थे, अल्लाह के ख्याल में, अपने रब के ख्याल में इस तरीके से वो महव हो जाते, इस तरीके से डूब जाते थे कि बाल बच्चों की बातचीत और शोरगुल का बिल्कुल उनको कोई इल्म नहीं होता था कि क्या हो रहा है। चनांचे ये तफसील जो है नकल किया इहया उलूमुद्दीन के अंदर। वयरा अन मुस्लिम बिन यसार अन्नहु काना इदा अरादा सलाह क़ाल लि अहलिही तहदसु अंतुम फ़इन्नी लस्तु इस्माकुम। इस तरीके के अल्फाज इहया उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201 अलबाबुल अव्वल फ़ी फ़ज़ाइलिस सलाह फ़ज़ीलतुश खुशू दारुल खैर दमिश्क का ये छपा हुआ नुस्खा है। चुनांचे जब वो कितना भी शोरगुल बच्चे घर के अंदर करे तभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी को जो है, इसी कैफियत को अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऊचू बा तकबीर हा मकरून शुदन हमचू बिस्मिल अस जहाँ बैरून शुदन। यानी पक्के नमाजी जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो मौला के ख्याल की दुनिया में ऐसा वो गर्क हो जाते हैं, ऐसा वो डूब जाते हैं कि इस जहान से ऐसे बेताल्लुक़, यानी इस दुनिया से इस तरीके से बेताल्लुक़ हो जाते हैं जैसे कि मुर्दा इस जहान से बेताल्लुक़ हो जाता है। इस तरीके से जो है ये हजरात नमाज को पढ़ा करते थे। एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान के कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से उस कमरे के किसी कोने में आग लग गई। आप लोग शोर गुल कर रहे थे, चिल्ला रहे हैं आग के लिए, लेकिन आप बराबर नमाज में मशगूल रहे। सलाम फेरने के बाद घर वालों ने अर्ज़ किया कि हज़रत तमाम महल्ले वाले आग बुझाने के लिए जमा हो गए, सब के सब लोग जो है आग को बुझाने के लिए जमा हो गए, लेकिन आपने नमाज न छोड़ी। हालांकि ऐसे वक्त तो फ़र्ज़ नमाज की नीयत को तोड़ देना भी जायज़ और दुरुस्त है। तो हज़रत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर नीयत तोड़ देता। खुदा की कसम मुझे तो आग लगने का बिल्कुल इल्म ही नहीं हुआ। कितने इस्तिग़राक़ के साथ वो अल्लाह के सामने हाजिर थे और इस तरीके से वो नमाज पढ़ रहे थे। चुनांचे हिलियतुल औलिया के अंदर क़ाल जाफ़िर बिन हय्यान ज़कर अली मुस्लिम बिन यासिर क़िल्लत तफ़ातुहु फ़ी सलातिही फ़क़ाल वमा युद्रिकुम ऐन क़ल्बी अन हबीब शहीद अन मुस्लिम बिन यसार कान क़ाइमन युसल्ली फ़वक़ा हरीक़ु इला जंबी फ़मा शअर बिही। इस तरीके के अल्फाज जो हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 290 मतबाअतुस सादा बिमिस्र का छपा हुआ और तबक़ातुल कुबरा li इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 186 तबक़ातुस सानिया दारू सादिर बैरूत 1958 का ये छपा हुआ नुस्खा। उसके अंदर 10वें नमाजी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात नमाज पढ़ी।
جب صبح کو آپ کی نماز کی جگہ کو دیکھا گیا تو اس پر ایسا تازہ خون پڑا ہوا تھا جیسے کہ ابھی ابھی بکری یا بکری کا بچہ یا بکری جو ہے ذبح کیا گیا ہو۔ آپ کے مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت رات کی کیفیت ہم کو بھی بیان فرمائیں تاکہ ہم کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو نماز کی نیت باندھی تھی، عرش الہی کے سامنے پہنچا دیکھا کہ اللہ کا عرش ہانپ رہا ہے، جیسا کہ جانور تھک کر ہانپنے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میرے محبوب یعنی رب العالمین کا پتہ بتا، کیونکہ ہم کو بتلایا گیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش کے پاس ہے، اب تو بتا کہ میرا محبوب کہاں ہے؟ عرش نے کہا اے بایزید، تم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ عرش کے پاس ہے، اور عرش سے یہ کہا گیا ہے کہ رب العالمین ایمانداروں کے پاس ہے۔ عرش کی بات سن کر مجھ پر وجد اور بے خودی طاری ہو گئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ پوری تفصیل جو ہے میری نماز صفحہ نمبر 12 دارالاشاعت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر یہ تفصیل کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بینائی کمزور ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اپنی آنکھیں بنوا لیجئے۔ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، عبداللہ سے، کہ یہ صحابی رسول ہے، کہتے کہ آپ اپنی آنکھ تو بنوا لیجئے لیکن آپ کو کچھ روز نماز چھوڑنی پڑے گی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ دن تک نماز چھوڑنی پڑے گی۔ کیونکہ ان ایام میں یعنی عام طور پر جو ہوتا ہے کہ آنکھ وغیرہ جب بنوایا جاتا ہے تو سجدہ زمین پر کرنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے مریض کو کوئی تکلیف آنکھ کے سلسلے میں نہ آنے پائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے یہ۔ تو ان ایام میں چونکہ جو آنکھ بنوانے کا پریڈ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ان ایام میں ان اوقات کے اندر جو ہے آنکھ کو حرکت کرنے سے بچانا ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیجئے کچھ دن تک، کیونکہ ان ایام میں حرکت سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چند دن تک چت لیٹنا پڑے گا اور اسی حالت میں جو آپ نماز پڑھیے چت لیٹ کر کے۔ چونکہ اس زمانے میں اتنا ٹیکنالوجی نہیں تھا اور اس قدر ماہر اطباء نہیں تھے، اس لیے جو ہے اور آج کے دور میں تو آسان ہو گیا ہے بہر صورت۔ تو آپ نے یہ بات سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ کام مجھ سے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ میں نماز کو چھوڑ دوں، میرے سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہایت غصہ اور غضب کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ لوگوں، مجھے اندھا رہنا منظور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ بتاؤ یہ حضرات کس قدر جو ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور آج ہمارا حال کیا ہے نمازوں کے سلسلے میں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے مختلف کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے۔ میں جو ہے آپ کے سامنے ایک کتاب مجموع الزوائد کے حوالے سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قام بصرہ قیل نداؤک وتدع الصلاة ایامها قال لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الصلاة لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے طبرانی کے اندر بھی نقل کی گئی ہے اور کیا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 کتاب الصلاة باب فی تارک الصلاة جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر جو ہے یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہونے کی حالت میں اپنے ساتھ ایک لڑکے کو رکھا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو اس کو ساتھ لے کر آپ جو ہے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال دیکھ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنتے ہیں۔
नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ लाते थे वो। एक दिन वो लड़का इत्तेफाक से नहीं आया, हो सकता है कहीं चले गया है, भूल गया है, कोई सूरत हाल पेश आ गई हो बच्चे के साथ। नमाज का वक्त हो गया, आपने उस लड़के को आवाज़ दी, उसकी अदम मौजूदगी की वजह से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि था ही नहीं तो कैसे सुनता हो। आपने नमाज के शौक में बेचैन होकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ऐ अल्लाह, ये नाबीना होना मुझे क़यामत में रुस्वा और शर्मसार ना करे। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत की रुस्वाई और शर्मिंदगी से बचा ले। इस दुआ की बरकत से उसी वक्त आपकी आंखों की बिनाई बहाल हो गई। ये अल्लाह का एकदम अजीब निज़ाम है। आप अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए खुद मस्जिद में चले गए, जब नमाज पढ़कर घर तशरीफ़ लाए तो फिर नाबीना हो गए। और फिर तो रोज़ ऐसा ही होता, जब नमाज का वक्त आता आपकी बिनाई बहाल हो जाती, जब नमाज से फारिग होकर घर तशरीफ़ लाते तो फिर नाबीना हो जाते, और आखिर वक्त तक आपका यही हाल रहा कि इस तरीके से नमाज का वक्त होता, आपको अल्लाह की तरफ से बिनाई नसीब हो जाती, फिर जब वक्त ख़त्म हो जाता फिर जो है आपकी बिनाई वापस चली जाती। ये अजीब अल्लाह का निज़ाम आपके साथ रहा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है काफ़ी तफसीली बहस देखनी है, तो शवाहिदुन्नुबुव्वा लितक़विया यकीन अहलुल फतवा सफ़ा नंबर 220 तबात 1892 नूल कशोर लखनऊ मुसन्निफ़ा मौलाना अब्दुर्रहमान जामी क़ुद्दस सिर्रहु अस्सामी ने जो है इसको लिखा है। चुनांचे ये फ़ारसी किताब है, इस फ़ारसी किताब के अंदर जो है थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। फ़ारसी किताब चुनांचे लिखते हैं मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, वहम अज़वे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आरन के रोज़े ब मस्जिद मी रफ्त बिरादर राह जनी जमीला पेश आमद वदर नफ्स खुद मेले बू बाज यफ्त गुफ्त अल्लाहुम्मा इन्नका जअलत ली बसरी निअमतन वक़द खशीतु अन यकून अलैया निक़मतहु फ़क़बिज़हु अंता चश्म वे पोशीदा शुद चूँ बमस्जिद में रफ्त। इस तरीके के अल्फाज जो है पूरी तफसील के साथ जो है नकल किया। चूँकि फ़ारसी किताब है, फ़ारसी चलती नहीं, इसलिए इसकी तफसील की वजाहत जो थी वो मैंने आपको ऊपर बतला दी। 12वें वो हजरात जो नमाज़ों को अल्लाह के सामने खुशू खुजू के साथ पढ़ा करते थे। 12वीं सूरत ये के आसिम बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया जब नमाज का वक्त आता है तो बड़ी एहतियात के साथ मैं वज़ू करता हूँ, बड़ी पाबंदी के साथ वज़ू करता हूँ, ताकि कोई सुन्नत और मुस्तहब वज़ू का ना रह जाए अच्छी तरह। इसीलिए मैं खूब ध्यान के साथ जो है वज़ू करता हूँ, और वज़ू करके जा नमाज पर खड़ा होता हूँ, यानी जिस जगह नमाज पढ़ना उस जगह खड़ा होता हूँ। काबा शरीफ को अपने सामने, रब्बुल आलमीन को अपने सर पर, जन्नत को अपनी दाएं तरफ और दोज़ख को बाएं तरफ और मलकुल मौत को अपने पीछे ख्याल करता हूँ, और इस कैफियत के साथ जो है मैं नियत बांध करके अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ। फिर नमाज को अपनी आखिरी नमाज ख्याल करता हूँ, बड़ी ताज़ीम से, बड़े एहतमाम के साथ, अदब के साथ अल्लाहु अकबर कहता हूँ। निहायत अदब के साथ फिर क़िरात पढ़ता हूँ, कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, बड़े गौर और तअम्मुल के साथ कुरान को सुनता हूँ और समझता हूँ। निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रुकू करता हूँ, इंतहाई ज़िल्लत और आजिज़ी के साथ सजदा करता हूँ, इंतहाई इनकिसारी के साथ गर्दन झुकाकर अत्तहियात पढ़ता हूँ, पूरी उम्मीद के साथ सलाम फेरता हूँ, और अल्लाह के डर और खौफ को दिल में रखता हूँ, और नमाज कबूल होने की उम्मीद और ना कबूल होने का डर दिल में रख करके नमाज से फारिग हो जाता हूँ। ये पूरी कैफियत जो है हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने जो है नकल की है।
चनांचे ये तफसीली बहस जो है इह्या उलूमुद्दीन के अंदर है। वरुविया अन हातिम अल-असम रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सुइला अन सलातिही फ़क़ाल इज़ा हानतिस सला इसबग़तिल वज़ू व उतीतुल मौज़िअ अल्लज़ी उरीदु सला। इस तरीके की पूरी तफसील जो है नकल की है इह्या उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201 किताब असरारिस सलाह व मुहिम्मातुहा फ़ज़ीलतुश खुशू दारुल खैर दमिश्क का छपा हुआ। मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा 46 अलबाबुर राबि अशर फी इत्माम सलाह बाबुल खुज़ूइ वल खुशू दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा। ये तफसील जो है उसके अंदर लिखी है। और फिर आगे कहते हैं और आइंदा, ये हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि और आइंदा सारी उम्र ऐसी नमाज पढ़ने का अहद अपने दिल में करता हूँ और पूरे 30 साल से इसी तरह की नमाज पढ़ता हूँ। आसिम बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये बातें सुनकर चीखे मार मार कर रोते जाते थे। ये थे हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, और अफसोस के साथ ये कहते जाते थे कि हाय हमसे तो इस तरह की एक नमाज भी कभी अदा नहीं हुई, एक भी नमाज जो है हमारी इस तरीके से अदा नहीं हुई। चुनांचे ये तफसील जो है नकल की है। कहते हैं वज़करा अन्न हातिम अज़्ज़ाहिद दखल अला आसिम बिन यूसुफ फ़क़ाल लहु आसिम या हातिम हल तहसनु अन तुसल्ली फ़क़ाल नाम क़ाल कैफ़ तुसल्ली क़ाल इज़ा तक़ारब वक़्त सला अस्बग़ुल वज़ू। इस तरीके के अल्फाज जो है पूरी की पूरी तफसील के साथ जो है नकल किया गया है। तंबीहुल गाफिलीन के अंदर और रूहुल बयान फ़ी तफसीरुल कुरानी li इस्माइल हक़ी तफसीर क़ौलुहु ताला व युक़ीमूनस सलाह सूरह बक़रा आयत नंबर 3 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36-37 जो छपा हुआ नुस्खा दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत सन 2009 का और 1430 हिजरी। तंबीहुल गाफिलीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 309 बाब इत्माम सलाह वल खुशू फ़ीहा दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत जो छपा हुआ नुस्खा है 2009 1430 हिजरी। इह्या उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 128 किताब असरारिस सलाह अलबाबुल अव्वल फ़ी फ़ज़ाइलिस सलाह अलमतबाअतुल अज़हरिया अलमिस्र का ये छपा हुआ नुस्खा है। तीसरी सूरत हज़रत 13वीं सूरत हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के मशहूर मुहद्दिस है, बुज़ुर्ग सूफ़ी आदमी है। इनके बारे में आता है कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सजदे में गए तो किसी दुश्मन ने आकर आपके पाँव की 2 उंगलियां और दूसरे पाँव की 5 उंगलियां काट डाली नमाजी की सूरत में। जब सलाम फेरा तो अव्वल नमाज की जगह खून पड़ा हुआ देखा और फिर पाँव में तकलीफ महसूस हुई। जब नमाज से फारिग हो गए तब जो है उनको पाँव में तकलीफ महसूस हुई। तब मालूम हुआ किसी शख्स ने मेरी उंगलियां काट डाली। सुबहान अल्लाह, क्या नमाज की शान होगी और क्या कैफियत और क्या इसकी कैफियत होगी कि हमारे अकाबरीन मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने कैसी नमाज़ें पढ़ी है। ये तफसील जो है मेरी नमाज नामी किताब के अंदर मिलेगी आपको। 14वीं नमाजी 14वीं सूरत एक औरत ने घर का तन्नूर जलाकर नमाज पढ़ने लगी और ख्याल ये था कि नमाज पढ़कर रोटी पका लूँगी। उस औरत का 2-2.5 साल का बच्चा घर में खेल रहा था। शैतान आया और उस बच्चे को तन्नूर के करीब लाकर उस नमाजी औरत के पास आकर कहने लगा, देख तेरा शीरखार बच्चा तन्नूर के करीब चला गया, तू नमाज तोड़कर बच्चे को वहां से उठा ले, ऐसा ना हो कि वो बच्चा तन्नूर में गिरकर जल जाए। उस औरत ने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, नमाज पढ़ती रही, बदस्तूर नमाज पढ़ती रही, जारी रही। शैतान को बहुत गुस्सा आया इस अमल पर और बच्चे को उठाकर तन्नूर में उस शैतान ने जो फेंक दिया और आकर उस औरत से कहने लगा कि तू नमाज पढ़ रही है और तेरा बच्चा तन्नूर में गिर गया, जल्दी जाकर उसको तन्नूर से निकाल ले, शायद अभी तक जिंदा हो और सिसकता हुआ मिल जाए तुझको। अरे कम वक्त बेवकूफ़, नमाज तो फिर भी पढ़ सकती है,
वो शैतान ने कहा उस औरत से। अगर बच्चा मर गया तो फिर नसीब नहीं होगा। शैतान ने अपनी तरफ से बहुत कुछ जो कहना था वो सब कुछ उस अल्लाह वाली औरत को कहने लगा, लेकिन उस औरत पर बिल्कुल असर इसका नहीं हुआ। किस तरीके से लोग नमाज का शगफ था, उनको अल्लाह से ताल्लुक़ और लगाव था, और बदस्तूर बेखुदी और महवियत के आलम में नमाज पढ़ती रही। अल्लाह के इश्क में, अल्लाह के रंग में रंगी हुई थी वो। शैतान औरत की साबित कदमी देखकर आग बगोला हो गया और वहां से अपना सा मुंह लेकर चला गया। शैतान जो है अपना सा मुंह लेकर के चला गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। जब ये औरत नमाज से फारिग हुई, निहायत इत्मीनान के साथ तन्नूर के पास गई, देखा कि बच्चा तन्नूर में पड़ा हुआ है, आग भड़क रही है और बच्चा अंगारों से खेल रहा है। क्या कुदरत का निज़ाम है। एक अंगारा बच्चे ने उठाकर मुंह में रख लिया तो वो अंगारा याकूत बन गया। क्या अल्लाह का निज़ाम है। वो बच्चा जो है उसको रखा तो याकूत बन गया। चुनांचे ये तफसील जो है अल्लामा शेख ज़ैनुद्दीन अर-मलीबारी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसके अंदर अल जवाहिर फी उक़ूबति अहलिल कबाइर उसके अंदर नकल की है। रुविया अन्नहु काना फी ज़मन ईसा अलैहिस्सलाम ज़ौजतु सालिह फजालत अजीन फी तन्नूर व अहरमत बिस्सलाह फजाअहा इब्लीसुल लईन। इस तरीके की इबारत जो है पूरी तफसील के साथ नकल की है अल जवाहिर फी उक़ूबति अहलिल कबाइर लिशेख अल अल्लामा ज़ैनुद्दीन अर-मलीबारी, सफ़ा नंबर 15 और 16, दारुल किताब अल अरबी दमिश्क, सूरिया का ये छपा हुआ नुस्खा है। उसके अंदर मैं हवाला इसीलिए फ़ौरन दे देता हूँ कि आजकल बड़े शुद्ध मुद्द के साथ जो है मसाइल के ऊपर और अल्लाह वालों की नमाज़ों के ऊपर एतराज़ करके कहा जाता है कि देवबंदी मौलवी और हनफी आलिम तो ऐसे ही कह देते हैं। इसलिए मैं हर मसले के आखिर में पहले हवाले देता हूँ, उसके बाद जो है उस मसाइल की तफसील को नकल करने के बिल्कुल आखिर में जो है हवाला देता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो ये मैंने कहाँ से बतलाया वो आपने देख लिया कि अल जवाहिर फी उक़ूबति अहलिल कबाइर के अंदर सफ़ा 15 और 16 पर इसको नकल किया। इसलिए इसी को जो है किसी शायर ने इस तरीके से कहा है, किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि या मक़ूला नकल किया है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। वलौ कानन निसा कमा ज़करना लफ़ुज़्ज़लतिन निसा व अलर रिजाली फ़लस्सानिया लिस्मि शम्स ऐबुन वलत तज़कीरु फ़ख्रुन लिल हिलाली। अगर सब औरतें ऐसी आली हिम्मत हो जाए तो यकीनन मर्दों से फ़ौक़ियत ले जाएंगी। नाम का औरत होना ऐब नहीं है और नाम का मर्द होना कमाल नहीं। सूरज अरबी ज़ुबान के मुहावरे में मुअन्नस है और चाँद मुहावरे में मुज़क्कर है। फिर चाँद व सूरज का फ़र्क सब पर रोशन है कि कौन क्या काम कर रहा है। मर्द वही है जो अल्लाह की मर्जी के आला दर्जे के काम करे, वरना औरत उनसे 1000 दर्जे बेहतर होगी। ये तफसील जो है नुज़हतुल मजालिस उर्दू जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 215 नमाजों की फजीलत जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर ये तफसील नकल की गई है। और नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर बड़ी तफसील के साथ जो है इसको नकल किया। तकरीबन 10 सफ़हात के अंदर जो है ये पूरे अल्लाह वालों की नमाज़ों के सिलसिले में जो है ये तफसील नकल की है। नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 272 से 282, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 और 282 तक जो है तकरीबन 10 सफ़हात में जो है इस पूरी तफसील को नकल किया है। हुरूफ़ तहज्जी उन्वान है हुरूफ़ तहज्जी पा उन्वान है पहले ज़माने के नमाजी। अब देख लीजिए कि पहले ज़माने के नमाजी कैसे है और हमारी नमाज का हाल क्या है। अल्लाह ताला हम सब को जो है इन अहलुल्लाह जैसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज की हलावत नसीब फ़रमाए। आमीन।